الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پچھلے درس میں ہم لوگ جہاں پر رکے تھے وہ یہ والی لائن تھی یا یہ والا شعر تھا، ان الغنی هو الغنی بنفسه ولو انه عار المناکب حافی، جس کا معنی یہ تھا کہ مالدار آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے نفس کا مالدار ہو، یعنی اپنے دل کا مالدار ہو یا اندرونی طور پر جو مالدار ہو. ولو انه عار المناکب حافی، اگرچہ وہ کھلے ہوئے کندھے والا کیوں ہی نہ ہو یا وہ ننگا بدن ہی کیوں نہ ہو. تو اگر آدمی کا دل صاف ستھرا ہے، اگر آدمی کا دل اچھی صفات سے متصف ہے تو یہی حقیقی مالدار ہوتا ہے، جس کے اندر قناعت ہو، جس کے اندر اچھی صفات ہو، تو یہی حقیقی مالدار ہے. اگرچہ اس اوپر سے وہ کیا ہے مالدار نہ دکھے، اگرچہ اس کے جسم پر کپڑے نہ ہوں، اگرچہ اس کے پیر میں جوتیاں نہ ہوں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. تو یہ اشارہ گویا کہ آدمی کو اپنے اندرونی اوصاف کو سدھارنا چاہیے، اندر اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، قناعت کو اپنانا چاہیے، یہ ساری صفات ہیں. اس کے بعد پھر شاعر آگے کہہ رہا ہے ما کل ما فوق البسیطۃ کافیا واذا قنعت فبعض شیء کافی وتعافلی طمع الحریص فتوتی ومروءتی وقناعتی وعفافی ومکارم عدد النجوم ومنزلی مأوى الکرام ومنزل الاضیاف. تو یہاں پر شاعر پھر آگے جو گنا رہا ہے کچھ اور اوصاف کو. شاعر کہہ رہا ہے ما کل ما فوق البسیطۃ کافیا، ما کل ما فوق البسیطۃ کافیا. بسیطہ سے مراد روئے زمین یا سرزمین کو مراد لے رہا ہے. تو کہہ رہا ہے ما کل ما فوق البسیطۃ کافیا، یعنی کہ اس روئے زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے. کب؟ جب اس کے اندر قناعت نہ ہو. اگر انسان کے اندر قناعت کی صفت موجود نہیں ہے تو اس روئے زمین پر تمام کی تمام چیزیں اس کے لیے ناکافی ثابت ہوں گی. اور اگر انسان قانع ہو جا رہا ہے تو اس کو بعض تھوڑی سی چیز ہی اس کے لیے کیا ہے کافی ہو جائے گی. تو قناعت کتنی بڑی چیز ہے، اس لیے آدمی کو قناعت کی صفت سے متصف ہونا چاہیے. تو پھر ایک بار اس کا مفہوم بناتے ہیں. شاعر کہہ رہا ہے ما کل ما فوق البسیطۃ کافیا، سرزمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے اگر وہ قناعت نہ رکھتا ہو. وَإِذَا قَنِعْتَ، اور اگر تم قانع ہو جاؤ تو بعض شیء کافٍ، یعنی کہ تھوڑی سی چیز بھی کافی کر جائے گی یا کافی ہوگی. تو یہاں پر جو بات نحوی اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہو جائے گا ما یہاں پر ما نافیہ ہے، ما اولا مشبہتان بلیس جو ہے وہی یہاں پر ہے، اسی میں سے جو لیسا کا عمل کرتے ہیں. ما اور لا یعنی کہ وہ ما اور لا جو کہ لیسا کا عمل کرتے ہیں، یعنی کہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. یہاں پر کیا ہو جائے گا ما کل ما فوق البسیطۃ. ما یہاں پر جیسے میں نے بتایا نافیہ ہے، مشبہ بلیسا ہے، کل مضاف ہے، اور یہ جو ما دکھ رہا ہے یہاں پر یہ ما کی نوعیت یہ ہے کہ یہ ما موصولہ ہے. فوق البسیطۃ، اور موصول کے بعد صلہ ضرور آتا ہے. تو یہاں پر صلہ کہاں ہے اسی کو ہمیں پتہ لگانا ہوگا. فوق یہاں پر مضاف ہے، البسیطۃ مضاف الیہ ہے. فوق البسیطۃ مضاف اور مضاف الیہ یہ ظرف ہے. کس چیز کا ظرف ہے یہ؟ تو یہاں پر ہمیں کچھ چیزیں محذوف ماننی پڑے گی. ما کل ما فوق البسیطۃ اے ہوا کائن فوق البسیطۃ. تو ما یہاں پر ما موصولہ ہے اور اس کے بعد ہے ہوا کائن فوق البسیطۃ. تو ہوا یہاں پر مبتدا ہو جائے گا اور کائن اسی کی خبر ہو جائے گی، اور فوق البسیطۃ یہ ظرف ہو جائے گا اسی کائن سے. تو کائن فوق البسیطۃ یہ خبر ہو جائے گا، اور ہوا یہاں پر مبتدا تو میں نے پہلے سے کہا ہی مبتدا ہے، تو مبتدا اور خبر ابھی یہ صلہ ہو جائے گا ما موصولہ کا. ما موصولہ اور اپنے صلہ سے مل کر اگر ہم اس کو ہم آسان سے اس میں کہیں تو یہ موصول اور صلہ مل کر کے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا کل کا. یا ما اس میں موصول ہے، فی محل جر ہے، مضاف الیہ ہے کیونکہ کل اس کی طرف مضاف ہے، اور فوق البسیطۃ یہ صلہ ہے اپنے محذوف کے ساتھ مل کر کے، جو کہ اصل میں ہے
हुआ काइनुन फौकल बसीतती। तो मौसूल और सिला ये मुज़ाफ़िल कुल का, और कुल मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िल से मिल करके ये माँ का इस्म हो जाएगा। माँ की ख़बर हो जाएगी काफ़ियन, और इसी वजह से यहाँ पर ये मंसूब है। तो मा कुल्लु मा फ़ौक़ल बसीतती काफ़ियन। व इज़ा क़निअत फ़बाअदु शैइन काफ़ी। व इज़ा यहाँ पर इज़ा इसमें शर्त है, क़निअत फ़ेल बफ़ाइल है जो कि जुमले शर्त है, और यहाँ पर फ़बाअदु शैइन काफ़िन ये जुमलतुल जवाब है। और चूँकि जुमलतुल जवाब जुमला इस्मिया है इसीलिए यहाँ फ़ा जवाब पर लाया गया है। फ़ा और ये उन जगहों में से है जहाँ पर फ़ा का लाना ज़रूरी होता है, और उनमें से भी एक जगह यह है कि जुमलतुल जवाब जुमला इस्मिया हो। तो बादु शैइन मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िर होगा कि मुब्तदा हो गया, काफ़िन इसी बादु शैइन की ख़बर हो जाएगी। काफ़िन काज़िन की तालील इसमें हुई है, असल में है काफ़ियुन काज़ियुन, क्योंकि काज़िन क्या है वो भी नाक़िस है, फ़ेल नाक़िस है, और काफ़िन ये भी फ़ेल नाक़िस है क्योंकि इसका जो फ़ेल है कफ़ा, असल में है कफ़ाया। तो काफ़िन असल में है काफ़ेयुन सेम तालील काज़िन वाली हुई है, और काज़िन की तालील मारूफ़ है, मशहूर है, उसको हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़बाअदु शैइन काफ़ी, और काफ़िन यहाँ पर क्या है, ख़बर है फ़बाअदु शैइन की। और ख़बर है तो ये मरफ़ू होना चाहिए, मरफ़ू नहीं है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर रफ़ा या ज़म्मा तक़दीरी है उस या पर जिस या को तख़फ़ीफ़ के लिए हज़फ कर दिया गया है, क्योंकि असल है काफ़ेयुन, तो या को तख़फ़ीफ़ के लिए गिरा दिया गया है, और उसी या पर ज़म्मा ख़बर का ज़म्मा मुक़द्दर है। उसके बाद शायर करा कि वतआफ़ुली तमअल हरीसी फुतूवती व मुरूअती व क़नाअती व अफ़ाफ़ी। आफ़ या आफ़ो के माने होता है करी है यकरहो, नापसंद करना। तो वतआफ़ु ऐ तकरहो, ली तमा के माने तमियत के माने लालच करना, तो तमाउन के माने लालच, हरीस के माने लालची। तो लालची की लालच को मेरे लिए नापसंद करती है क्या चीज़ है, फतूवती, और फतूवतुन के माने यहाँ पर है करम, यानी कि मेरा करम, मोरुवती मेरी शराफत, व क़नाअती मेरी क़नाअत पसंदी, व अफ़ाफ़ी और मेरी पाक दामनी। ये मैं का शायर करा है, ये जो औसाफ़ हैं, ये औसाफ़ जो मेरे अंदर पाए जाते हैं, ये औसाफ़ मेरे लिए लालची की लालच को नापसंद करार देते हैं। यानी कि लालची की जो एक लालची आदमी की जो लालच होती है उसको मेरे अंदर से दूर भगाते हैं। ये औसाफ़ जो मेरे अंदर पाए जाते हैं वो कौन से हैं, फतूवती यानी कि मेरा करम, मुरुवती मेरी शराफत, व क़नाअती मेरी क़नाअत पसंदी, व अफ़ाफ़ी और मेरी पाक दामनी। ये सारे औसाफ़ लालची की लालच को मुझसे दूर भगाते हैं। तो तआफ़ु फ़ेल हो जाएगा, तमाल हरी से ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि होकर मफ़ूल भी हो जाएगा। तआफ़ु फ़ेल का अली इजार मुझे मुताल्लिक़ हो जाएगा तआफ़ु से। तआफ़ु फ़ेल का फ़ाइल यहाँ पर हो जाएगा फतूवती, ये इसका फ़ाइल हो जाएगा, और उसके बाद जितने भी कलिमात आए हुए हैं वो सब उसी फतूवती पर मातूफ़ है। तो मुरुअती ये मातूफ़ हो जाएगा फतूवती पर, और क़नाअती ये मातूफ़ हो जाएगा मुरुअती पर, और अफ़ाफ़ी ये मातूफ़ हो जाएगा क़नाअती पर। तो सब एक दूसरे पर मातूफ़ है, और यहाँ से लेकर के फतूवती से लेकर के अफ़ाफ़ी तक ये सब क्या है, फ़ाइल हैं तआफ़ु के। फतूवती चूँकि फ़ाइल है तआफ़ु का, तो उसके बाद जितने भी मातूफ़ है वो सब भी फ़ाइल हो जाएंगे तआफ़ु का। तो शायर कह रहा है मेरे लिए नापसंद करती हैं लालची की लालच को मेरी ये औसाफ़, यानी कि मेरी करम, मेरी शराफत, मेरा करम, मेरी शराफत, मेरी क़नाअत पसंदी और मेरी पाक दामनी। उसके बाद शायर आगे कह रहा है व मकारिमी अददुन नुजूमी व मंजिली मअवल किरामी व मंजिलुल अज़ियाफ़ी। यहाँ पर दो जुमले हैं, व मकारिमी अददुन नुजूमी, मकरुमतुन की जमा मकारिम यानी कि शराफत। तो व मकारिमी अददुन नुजूमी मेरी शराफत है, मेरी अच्छाइयाँ, अददुन नुजूमी अदद माने तादाद, और नुजूम नजमुन की जमा नुजूम इसके माने होते हैं तारे। तो मेरी अच्छाइयाँ या मेरी शराफत या मेरी अच्छाइयाँ तारों की तादाद के बराबर हैं या तारों के बक़द्र हैं। तो मेरी अच्छाइयाँ तारों के बक़द्र हैं। व मंजिली, मंजिल के माने घर, जमा मनाजिल, व मंजिली मअवल किरामी
मअवा, मअवा के माने होता है ठिकाना। आवा यअवी माने होता है पनाह लेना, आवा यअवी। मअवा कहते हैं वो जगह जहाँ पर क्या है पनाह लिया जाए, पनाहगाह, तो इसको मअवा कहते हैं। व मंजिली मअवल किरामी, और करीमुन की जमा किराम यानी कि शरीफ लोग, तो मअवल किरामी शरीफ लोगों की पनाह लेने की जगह या शरीफ लोगों का ठिकाना। व मंजिलुल अज़ियाफ़ी, और ज़ैफ़ुन की जमा अज़ियाफ़, इसको कहते हैं मेहमान को। तो शायर कह रहा है व मकारिमी अददुन नुजूमी, और मेरी अच्छाइयाँ सितारों की तादाद के बक़द्र हैं। व मंजिली मअवल किरामी, और मेरा घर शरीफों का ठिकाना है और मेहमानों के रुकने की जगह है। तो ये अपने घर के बारे में कह रहा है। पहली चीज़ व मकारिमी अददुन नुजूम, एक जुमला ये हो गया, यानी कि मेरी अच्छाइयाँ सितारों के बक़द्र हैं और मेरा घर शरीफों का ठिकाना है और मेहमानों के उतरने की जगह है। यहाँ पर इसने बात हो गई। उसके बाद आगे कुछ और एक दो लाइनें पढ़ते हैं। शायर कह रहा है वक़ाला, यानी कि यही अबू फ़िरास अल-हमदानी, इसी के अशार अभी भी मुस्तमिर हैं, जारी हैं। इन अशार के अंदर वो लड़ाई की तरफ पेशकदमी करने वाले शख्स की तारीफ़ कर रहा है, यानी कि बहादुर आदमी की तारीफ़ कर रहा है। मिक़दाम यानी कि पेशकदमी करने वाला, अलल हुरूब लड़ाइयों की तरफ, तो लड़ाइयों की तरफ, जंगों की तरफ पेशकदमी करने वाले की तारीफ़ कर रहा है और उसकी अहमियत को उजागर कर रहा है कि तुम्हें पता है कि इसकी अहमियत क्या है। तो शायर कह रहा है अतदउ करीमन मन यजूदु बिमालिही व मन जाद बिन नफ्सिन नफीसति अक्रमु इदा लम यकुन युंजिल फ़िरारु मिनर रदा, इदा लम यकुन युंजिल फ़िरारु मिनर रदा अला हालतिन फ़स्सब्रु अर्जा व अहज़मु। शायर यहाँ पर कह रहा है इस्तिफ़ाम है, अतदउ करीमन, और इस्तिफ़ाम यहाँ इनकारी है। इस्तिफ़ाम अपने असल पर नहीं है कि इससे सवाल करना मकसूद है, नहीं। अतदउ करीमन मन यजूदु बिमालिही, ज़्यादा यजूदु के माने सखावत करना, करीम की माने सखी, जमा फ़याज़, जमा किराम, ज़्यादा यजूदु के माने सखावत करना। वमन जाद बिन नफ्सिन नफीसति अक्रमु, नफ्स के माने जान, अन नफीसा के माने कीमती, जो कोई कीमती चीज़ हो तो नफीस या नफीसा उसके लिए आता है। तो बिन नफ्सिन नफीसती यानी कि कीमती जान। तो अतदउ करीमन मन यजूदु बिमालिही, क्या तुम करीम कहते हो या करीम पुकारते हो, मन यजूदु बिमालिही, उस आदमी को जो अपने माल के ज़रिए सखावत करता है। क्या तुम करीम पुकारते हो मन, उस आदमी को जो अपने माल के ज़रिए से सखावत करता है। यानी कह रहा है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें करीम उसको नहीं बोलना चाहिए जो अपने माल के ज़रिए से सखावत करता है, बल्कि दर हकीकत असली करीम तो वो है जो अपनी कीमती जान के ज़रिए से सखावत करता है। यानी जो मैदान में जाके, जो लड़ाइयों में जाके, जो मार्कों में जाके लड़ता है और अपनी जान दे देता है, तो असल करीम ये है। इसको तुम लोगों को सखी या करीम कहना चाहिए। तो शायर कह रहा अतदउ करीमन मन यजूदु बिमालिही, क्या तुम लोग पुकारते हो करीम या फ़याज़ या सखी उस आदमी को जो अपनी माल के ज़रिए से सखावत करता है। वमन जाद बिन नफ्सिल नफीसत अक्रमु, हालांकि वो शख्स जो अपनी कीमती जान के ज़रिए से